Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is your Neetu ma'am, and once again welcome to the digital classroom of DSA. पढ़ाई हो रही है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, PDF सॉल्व करो, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करो. हम अभी NDA क्रैश कोर्स कर रहे हैं इंग्लिश का. बेटा इसके बाद as I'll stop the crash course, I'll start the state board syllabus also, so that simultaneously your state board syllabus also get completed. Okay, because you have to score good marks in state board also. तो NDA तो क्रैक करना ही है, साथ में स्टेट बोर्ड में भी बहुत अच्छे से शाइन करना है. तो वी आर डूइंग द टॉपिक ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस का हमारा एक लेक्चर हो चुका है. दिस इज द सेकेंड लेक्चर. वी हैव डन 25 सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डरिंग द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, एंड दैट सेंटेंसेस वी ऑब्जर्व कि द सेंटेंस पैटर्न ऑफ जम्बल्ड वर्ड्स come in two patterns. One is directly PQRS and the other is the introduction is given and after that PQRS sequence is given. So you have experienced both the patterns. You know how to solve both the patterns. So we'll continue with the 26th sentence today. Or beta, after completing ordering of words, I got a request from one of you to just have the comprehension topic also in the lecture. So after ordering of words, I'll do some comprehensions also in my lecture. इसके अलावा भी बेटा, if you want some topic to be done in the class, just message me and I'll cover that topic for you all, so that you must have that complete revision of the English syllabus. Okay, so now let's start ordering of sentences or ordering of words in a sentence. So students, let's start from the sentence number 26. We have already done sentence 1 to 25 and all the sentences were from last year papers, so that you must understand the level of sentence which comes in the exam. As I have told you earlier, NDA English का paper बहुत ज़्यादा difficult नहीं आता, but you must have that presence of mind at that particular time to solve the particular question. Okay, now check out this sentence. Would you, यहाँ पर introduction दिया है would you, that means इसके बाद का पूरा sequence हमें check करना है. Now see, यहाँ पर subject दिया है you, इसके बाद हमें check out करना है होगा क्या. Would you then like to come on Saturday at the International House to a concert. अब हमें पता है subject के बाद हमेशा verb आएगा या helping verb आएगा. यहाँ पे कहीं helping verb या verb दिख रहा है. See this. Would you like to come? Come किसको बोल रहे हैं हम? इसको. तो it will be first. तो would you like to come? कहाँ पर? कहाँ पर आना है? कब आना है वो बाद में, पर कहाँ पर आना है? See, at the International House. Would you like to come at the International House या to a concert? दोनों जगह की बात है. कॉन्सर्ट में आना है, हाउस में आना है, तो इसको हम टू करते हैं. Now, would you like to come to a concert at the International House on Sunday? Let's check this option. क्या ये ऑप्शन है? PSRQ. PSRQ है. Okay. अब हम दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं. Would you like to come to a concert on Saturday at the International Airport? अगर हम इसको 3 करें और इसको 4 करें तो हमारा ऑप्शन है क्या? PSQR. PSQR. तो बेटा ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही आपका सीक्वेंस आ जाएगा. जस्ट चेक आउट डिफरेंट फॉर्मेशंस, चेक आउट डिफरेंट पैटर्न्स, so that you can have the best sequence. Okay, now I hope this sentence is clear to you. Now the next sentence. Now check out this. Sentence number 27. It is to be admitted not necessary that to an engineering college you qualify an entrance examination. क्या होगा? Sequence क्या होगा? आपको introduction दिया है it is. It is the way to start a sentence. It is phrase के form में there is, it is. Now इसके लिए best option हमें ढूंढना है. Now it is, यहाँ पे to be admitted या not necessary ये तो नहीं आएंगे, ये स्टार्टिंग में नहीं आएंगे. स्टार्टिंग में P होगा या Q होगा. It is to be admitted या it is not necessary that. हम दोनों ऑप्शंस रख के देखते हैं. अगर हम इसको 1 मान रहे हैं, ओके, it is to be admitted. Admitted के बाद you qualify an entrance examination, ओके. 2 अगर हम इसका माने,
examination. You qualify an entrance examination to an engineering college? No. To be admitted to an engineering college? No. अगर हम इसको देखें, it is to be admitted, हम पहले ही ले चुके हैं इसको, तो सेंटेंस का सीक्वेंस ही नहीं बैठ रहा. सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होगा बेटा? सेंटेंस का सीक्वेंस होगा इट इज नॉट नेसेसरी दैट, नॉट नेसेसरी दैट. इसको अगर हमने वन माना, इसके बाद क्या नेसेसरी नहीं है? अब ये यू क्वालिफाई एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हम ये रख के देख सकते हैं क्या ये आएगा? इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू क्वालिफाई एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. किस चीज के लिए? टू बी एडमिटेड. कहां पर? टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज. तो क्या सीक्वेंस आया हमारा? क्यू एस पी आर. क्यू एस पी आर है कहीं? हाँ, दिस इज द करेक्ट. तो क्यू एस पी आर इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट. नाउ वी आर स्टार्टिंग ईयर 2012, पेपर नंबर 2. नाउ चेक आउट दिस. अब यहाँ पे डायरेक्टली PQRS दिया है, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन नहीं दिया है. PQRS में हम कैसे करेंगे? सी ही हैड. नाउ सब्जेक्ट ही, सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चाहिए. तो यहाँ ही हैड दिया है, हैड के बाद हमें V3 चाहिए या हमें कुछ एक्शन चाहिए. ओके, ही हैड क्या है उसके पास? दैट आई कुड नॉट से, नो टू हिम, सच अ विनिंग स्माइल. ये he had मतलब उसके पास है, उसका पोजीशन. जैसे he has a car, उसके पास कार है. he had a car, उसके पास कार थी. अब यहाँ पर उसके पास क्या था? he had a such a winning smile. तो P को अगर हम 1 करें, R हो गया हमारा 2. उसके बाद स्माइल के बाद that. I could not say no to him. him ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, him, me, her, us, them, ये हमेशा सेंटेंस में एंडिंग पे आएंगे. he, she, we, I, ये हमेशा सेंटेंस की बिगिनिंग पे आएंगे. ओके, नाउ व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? P R S Q. P R S Q ना, देयर P R S Q. ठीक है. नाउ चेक आउट द नेक्स्ट. ओके, he nodded. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉड करना? What do you mean by nod करना? Nod करना just saying yes by nodding your head. Okay, he nodded, he understood as though everything. Now, he nodded as though. आगे he understood everything. P R Q S. P R Q S. Here is P R Q S. So I hope these sentences are easy for you to solve. अगर फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है, जस्ट डू अ स्क्रीनशॉट एंड मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. नाउ द चाइल्ड बर्न डाउन द हाउस बाय प्लेइंग विथ मैचेस. नाउ सी बेटा, समटाइम्स आप जो सीक्वेंस बना रहे हो सकता है वो सही है, बट उसका ऑप्शन में वो सीक्वेंस नहीं होगा. दैट मीन्स उससे मिलता जुलता दूसरा कोई सीक्वेंस. अगर हम इस सेंटेंस को देखें, द चाइल्ड बर्न डाउन, तो हम चाइल्ड सब्जेक्ट, देन बर्न डाउन वर्ब, दैट मीन्स द चाइल्ड बर्न डाउन. तो इसको हम 1 ले सकते हैं. क्या बर्न डाउन? द हाउस. कैसे? बाय प्लेइंग विथ मैचेस. PQRS, क्या ये सीक्वेंस सही है? हम चेक करते हैं इसमें. PQRS का कोई ऑप्शन है? दैट मीन्स PQRS ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये सीक्वेंस तो नहीं वर्क करेगा. चेक आउट द नेक्स्ट सीक्वेंस. अब क्या कर सकते हैं? द हाउस बाय प्लेइंग विथ मैचेस. नो, हम इसको भी फर्स्ट नहीं ले सकते. अब हम किसको फर्स्ट लेंगे? यस, बाय प्लेइंग विथ मैचेस द चाइल्ड बर्न डाउन द हाउस. क्या ये सीक्वेंस वर्क करेगा? RSPQ. RSPQ, here it is, RSPQ. तो इसलिए just work on each and every option so that you can get the best option. आप जो सीक्वेंस बना रहे हैं अपने रूल से, ओके, आप उस रूल से बनाइए और चेकआउट करिए वो ऑप्शन है क्या. अगर वो ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स वो सीक्वेंस गलत है. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट, इन हिज इनोसेंस आई बिलीव ऑफ द चार्ज एंड एक्विटल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्विटल? एक्विट करना, एक्विट ऑफ द चार्ज. आई टोल्ड यू दिस वर्ड
ऑलवेज कम्स इन द एग्जाम, नो मैटर इन विच सेगमेंट, बट वो आता है। एक्विट करना, फ्री ऑफ द चार्ज, बाइज्जत बरी होना, निर्दोष घोषित होना। तो एक्विट होना मतलब सारे इल्जामों से फ्री होना। नाउ सी, आई बिलीव of the charge and acquittal. Now I believe this subject, this verb, तो इसको हम वन मानते हैं। किस में बिलीव कर रहे हैं? In his innocence. I believed in his innocence. अब इसके बाद and acquittal of the charge, मैं उसके निर्दोष होने में बिलीव करती हूँ और उसके ऊपर से जो इल्जाम हटाए गए हैं मैं उसमें भी बिलीव करती हूँ। Now see, QPSR, here it is, QPSR। सेंटेंस इजी लग रहे हैं बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी कमांड आएगी उस टॉपिक पर, उतने ज्यादा सेंटेंस इजी लगेंगे। ओके, वी हैव डन 31 सेंटेंस, नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, चेक आउट द सेंटेंस नंबर 32। हियर द इंट्रोडक्शन इज गिवन, उसके बाद PQRS स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन, माय लिटिल सिस्टर, दैट मीन्स सब्जेक्ट दिया है। ओके, नाउ चेक, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए। क्या वर्ब है यहाँ पर? प्लेड। ओके, हम इस ऑब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट, इस वर्ब को ले सकते हैं। उसके बाद हु वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट। नाउ सी, हु वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के लिए लगता है और सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद लगता है। ओके, कॉल द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड। अब हु किसके लिए लगा? वो बॉय के लिए। आई वॉन्ट टू मीट द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो हु कहाँ लगा? बॉय के बाद। तो यहाँ हु किसके लिए लगा है? सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्या है? माय लिटिल सिस्टर। तो माय लिटिल सिस्टर के बाद यहाँ पर वन, माय लिटिल सिस्टर हु वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट। उसके बाद यहाँ पर अब ये पूरी जो क्वालिटी है ये किसकी दे दी? ये सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा टू, ये वन, ये टू। माय लिटिल सिस्टर who was quite intelligent played with dolls। अब यहां पर या तो इसको 3 लेंगे, इसको 4 लेंगे, या इसको 3 लेंगे, इसको 4 लेंगे। चेक आउट द सीक्वेंस। माय लिटिल सिस्टर who was quite intelligent played with dolls in school instead of reading books। तो हमारा क्या आ जाएगा सीक्वेंस? RSPQ, RSPQ। ओके, हम दूसरे वाले ऑप्शन पे भी वर्क करते हैं। RSPQ से और कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? नो। तो अगर हम इसको लेंगे, माई लिटिल सिस्टर हु वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट प्लेड विथ डॉल्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स इन स्कूल, तो ऑप्शन क्या बनेगा? RSQP। RSQP और ऑप्शन है ही नहीं, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो बेटा जितना सीक्वेंस आप फॉर्म कर रहे हो उन सारे सीक्वेंस को ऑप्शन से मैच करके देखो कि which sequence is best. Okay, now we do the next. Now for having stood first last year at the BA examination he was awarded gold medal. Again PQRS वाले start हो गए हैं। कैसे होगा यहाँ पर? See, he was awarded, यहाँ पर he दिया है subject, awarded दिया है verb, तो इसको first। He was awarded gold medal। एस से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये PR वाले तो कैंसिल ही हो गए। अब यहाँ पर क्या आएगा? सी, ही वॉज अवॉर्डेड गोल्ड मेडल। किस चीज के लिए? फॉर हैविंग स्टूड फर्स्ट। कहाँ पर? एट द BA एग्जामिनेशन। कब? लास्ट ईयर। तो व्हाट इज द सीक्वेंस? SPRQ, दिस इज द राइट, SPRQ। ओके, नाउ are you observing how easy these sentences are? आप लोग जो डर जाते हो क्वेश्चंस का नाम सुन के, वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते। जम्बल्ड वर्ड्स और जम्बल्ड सीक्वेंस सुन के ही बच्चे डर जाते हैं, बट नो, आपको नहीं डरना है, बिकॉज यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड यू आर अप्लाइंग द रूल्स, यू आर अप्लाइंग द स्ट्रक्चर, जिससे आपकी गलती होगी ही नहीं। ओके, नाउ वी आर प्राउड दैट as our chief guest is a former student of his college who is presiding over today's function। Again, who वाला सेंटेंस आया है। who वाले सेंटेंस में आपको पता है, जब सेंटेंस में who रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया हो, who से पहले हमें एक सब्जेक्ट चाहिए जिसके लिए who यूज है। चेक आउट, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, we are proud that। सब्जेक्ट नहीं दिया, सब्जेक्ट अभी चाहिए हमें। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? our mayor,
आवर मेयर मिल गया हमको सब्जेक्ट, अब हु सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद हु, तो ये हो गया हमारा सेकंड। मतलब हमें ये समझ में आ गया हमारा सीक्वेंस क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं उनको तो गलत ही कर दो। अब हमारे दो ऑप्शंस बचे हैं। सी बेटा कितना इजी हो जाता है काम जब आप रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हो, स्टेप बाय स्टेप सब इजी चला जाता है ना। सी हमने दो स्टेप देख लिए, क्यू और एस, दैट मीन्स क्यू पी तो होगा नहीं, तो ये भी गया। नाउ क्यू एस, इसके आगे का रख के देखते हैं। वी आर प्राउड दैट आवर मेयर हु इज प्रिसाइडिंग ओवर टुडेज फंक्शन एज आवर चीफ गेस्ट इज अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। नाउ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया आंसर। जब आप स्टार्ट करोगे सेंटेंस को सॉल्व करना, यू विल गेट द रिदम ऑफ सॉल्विंग दैट। एक दो सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आएगी जब आप क्वेश्चनरी सॉल्व कर रहे हो, बाद में यू विल गेट द प्रैक्टिस एंड यू विल इजीली सॉल्व द सेंटेंस। ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट सेंटेंस। Now at the end of the morning exercise, the soldiers to get ready to leave were asked for an unknown destination. Now see, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया है, this is the introduction, बट यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया। At the end of the morning exercise, मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद सब्जेक्ट नहीं दिया, मतलब सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पर, दिस द सोल्जर्स, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। नाउ सी, वर आस्क्ड, क्या बोला गया उनको? टू गेट रेडी टू लीव, कहाँ के लिए? फॉर एन अननोन डेस्टिनेशन। तो PRQS है यहाँ पर कहीं, हियर इट इज PRQS। तो बेटा बहुत इजी है, बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग है। अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स की, टोटल 10 आर इन योर कमांड। Okay, that means 4 marks each questions. So just solving the ordering of words, you can easily score 40 marks. बेटा कुछ कुछ सेगमेंट एनडीए इंग्लिश एग्जाम में बहुत स्कोरिंग है, जैसे idioms and phrases, they are easy to score. Ordering of words, easy to score. Sentence improvement, easy to score. Synonyms, antonyms में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, but still बाकी सारे टॉपिक्स यू आर हैविंग दैट कमांड ऑन दैट। अगर आपके ग्रामर के रूल्स पूरी तरह कवर हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्पॉटिंग द एरर, ये तीनों एक ही पैटर्न के एक ही जैसे सेंटेंस होते हैं। आप उसको स्पॉटिंग द एरर में दे दो तो आपको करेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ गलती ढूंढना है। ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में उन्हीं रूल्स के रिवीजन को आपको उसी सेंटेंस को इंप्रूव करना है। ओके, सेंटेंस कंप्लीशन में भी वही चीज करनी है, आपको बेस्ट वर्ड्स अप्लाई करना है। क्लियर? ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड इडियम्स, दे आर द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स इन इंग्लिश एग्जाम। तो अगर 10 इडियम्स आ रहे हैं और 10 ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आउट ऑफ 50, 20 क्वेश्चंस आर इन योर कमांड। इजीली 80 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं by doing 20 questions correctly. Spotting the error के अगर 10 questions आ रहे हैं, spotting the error की भी हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि spotting the error का भी पूरा सेगमेंट आपकी कमांड में है। So 50 to 60% of the questions in the NDA exam are very easy to correct, are very easy to solve. 20% जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज माई एश्योरेंस टू यू। ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ आफ्टर हैविंग गॉट अप फ्रॉम बेड, अगेन जैसे हमने इससे पहले सेंटेंस किया वैसे ही है। आफ्टर हैविंग गॉट अप फ्रॉम बेड, आपको सीन दिया है पर सब्जेक्ट नहीं दिया, दैट मीन्स इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। कोई सब्जेक्ट हो सकता है, दिस द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या चाहिए? वर्ब, वर्ब क्या है? ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द अटेंडेंट, क्या ऑर्डर दिया? टू ब्रिंग द कॉफी इमीडिएटली। ओके, चेक आउट द सीक्वेंस। PRQS है यहाँ पर, PRQS, हियर इट इज। इजीली हो रहे हैं बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ टू रिजॉल्व इट, देन इट इज इजियर टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम। सी बेटा, एक ही पेपर में उन्होंने दोनों पैटर्न के सेंटेंस दे दिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट PQRS है, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द पैटर्न्स। ओके, चेक आउट दिस। अब टू रिजॉल्व इट, इट इज इजियर,
कहाँ से स्टार्ट होगा? इट से। सी कई बार सेंटेंस को स्टार्ट करने का तरीका होता है इट इज, देयर इज, हमने इससे पहले सेंटेंस में ये डिस्कस किया है। तो इट इज ईजियर, इसको हम 1 लेते हैं। ओके, अब इट इज ईजियर टू रिजॉल्व इट देन टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम। तो इट इज ईजियर टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम, ये टू, देन टू रिजॉल्व इट। व्हाट विल बी द आंसर? RSQP है यहाँ पर, RSQP, there it is, clear? तो that means sentence किसी भी पैटर्न में है, you must have the practice and you must have the command over the grammar rules to solve these type of sentence। और अगर आप ये वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई होंगी कि सेंटेंस को स्टार्ट करने का एक तरीका होता है इट इज, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए ही चाहिए, अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज किया है उससे इमीडिएटली पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिससे आप ऐसे सेंटेंस इजिली कर सकते हैं। ओके, नाउ विल डू द नेक्स्ट। So students, now check out the next sentence. Now, to my client that I speak immediately, it is important. See, मैंने अभी आपको बताया it is the way to start the sentence. तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना। तो हम इसको अगर 1 मानते हैं, it is. Now, S से स्टार्ट होने वाले ऑप्शंस कितने हैं? 3। तो P वाला तो रॉन्ग कर दो। अब 3 ऑप्शन बचे हैं। It is important that I speak. Now, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो ये to, it is important that I speak, किससे? To my client immediately. तो what will be the best option? SQPR. SQPR. Now the next. Now you had better of getting good response so that we will be sure work hard. इस सेंटेंस में देखो, यहां पर आपको इंट्रोडक्शन दिया है, You had better, हमने had better वाला रूल किया है बेटा। had better is used to give advice, तुम्हें ये करना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए? You had better work hard, so this will be first. You had better work hard, किस चीज के लिए? So that of getting good response we will be sure. तो you had better work hard of getting good response so that we will be sure. No, you had better work hard so that we will be sure of good response. Okay, so what is the correct sequence? SQRP. This is the correct sequence. SQRP. Now the next. Now we are starting year 2012, paper number 1. Now see. Even when are well-informed people engaged in a conversation, their conversation may be dull. Now, यहाँ पर even when के बाद हमें क्या चाहिए? Subject. Now, subject कहाँ है? यहाँ, उसके साथ verb भी है। तो even when people engaged in a conversation, 1. R से start होने वाले कोई ऑप्शन? अच्छा, ये 1 है यहाँ पर। ओके, P है यहाँ पर। Even when people engaged in a conversation, तो P से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ये तो रॉन्ग हो गए, ये भी रॉन्ग। नाउ सी, PR, इसके बाद Q, even when people engaged in a conversation are well informed, their conversation may be dull. Sometimes अगर आपने स्टार्टिंग का सेंटेंस सॉल्व कर लिया, स्टार्टिंग के 2 पार्ट सॉल्व कर लिए, तो आपको आगे मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज हो सकता है उन स्टार्टिंग सॉल्व करने के बाद जो सीक्वेंस है उसका सीक्वेंस एक ही है, उस स्टार्टिंग से अल्फाबेट से एक ही सीक्वेंस बन रहा है। जैसे इसमें हमें ये पता चला P और R ये सीक्वेंस में है, P और R। अब PR जब हमारे कंफर्म है, देखो PR से कोई भी सीक्वेंस नहीं है वहां पे, दैट मीन्स दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट। Now, a pressure cooker fits tightly on the top, consists of a very strong vessel made of aluminium alloy with a lid that. अब सब्जेक्ट हमारा अ प्रेशर कुकर। ओके, इसके बाद का हमें सीक्वेंस देखना है। नाउ यहाँ पर P से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन हैं, तो R वाले और Q वाले तो रॉन्ग कर दो। अब हम देखते हैं P के बाद R रखेंगे या P के बाद Q रखेंगे। नाउ अ प्रेशर कुकर कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेसल फिट्स टाइटली ऑन द टॉप। नो, और अगर हम इसको देखेंगे, अ प्रेशर कुकर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय विथ अ लिड दैट। नाउ एल्यूमिनियम एलॉय मेड अप ऑफ किसके बारे में बता रहे हैं? इसके बारे में। सी द ट्रिक,
यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो P के बाद हमें क्या चाहिए? S चाहिए? नो। अ प्रेशर कुकर मेड ऑफ अ एल्यूमिनियम alloy with a lid that fits tightly on the top, consists of a strong vessel. What will be the answer? Check it out. देखो क्या आंसर आएगा, सारे ऑप्शंस रख के देखो उसमें और सारे ऑप्शंस पे वर्क करके देखो. नाउ अ प्रेशर कुकर consist of a strong vessel. This will be the second. Okay, उसके बाद made up of a aluminium alloy with a lid that fits tightly on the top. Answer is PRSQ. So you will take time if the sentence are some confusing, but not to worry. Check out each and every option. क्या option best suit कर रहा है वहां पर? Okay, now I'll move forward to the next. Now students, check out this sentence. See, is to convince your reader. तो ये तो first आएगा नहीं. You have taken on a subject is right. That the position. तो ना ये first आएगा ना ये first आएगा. First क्या आएगा sentence में? या तो Q आएगा या R आएगा. Now you have taken on a subject is right. ये incomplete लग रहा है. See, the aim of an argumentative essay. Sentence article दा से start हो रहा है. ये noun है, the aim. Now the aim of an argumentative essay. Now this is noun और इसका aim क्या है? तो this is one. Q से हम sentence start कर रहे हैं. Q से देखो एक ही option है. QPSR. Check out this. The aim of an argumentative essay is. अब यहाँ पे helping verb is. To convince your reader. तो to. QP. Now, the aim of an argumentative essay is to convince your reader that the position you have taken on a subject is right. So, this is fourth. Answer is QPSR. बेटा sentence को बार बार पढ़ के देखो. Wrong sentence acceptable ही नहीं लगेगा. Correct sentence एकदम से दिमाग में क्लिक करेगा. तो बार बार पढ़ो. No need to worry. एक बार नहीं 4 बार पढ़ो. Sequence set करके देखो. Okay. Now see, there is only one way the world can be in which made safe from the war. Now there is only one way. मैंने आपको बताया था कि कई बार सेंटेंस को स्टार्ट करने का तरीका होता है it is, there is. तो क्या यहाँ पर there is से सेंटेंस स्टार्ट किया गया है? हम देख सकते हैं ये, चेक आउट करो. There is only one way in which the world can be made safe from the war. हो सकता है क्या यहाँ पर? Yes, this is one. अब इसमें P से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन हैं, तो S और R वाले तो रॉन्ग कर दो. अब चेक करो P के बाद क्या आएगा. There is only way in which, किस बारे में? The world can be made safe from the war. What is the correct sequence? P R S Q. P R S Q. यहाँ पर P R Q S है, हम वो करके देखें. There is only one way in which the world can be made safer. हाँ यही तो है PRQS. Sorry, PRQS. Okay. Now check out this sentence number 44. The conspiracy got wind of the government against the king's life. Conspiracy. What do you mean by the word conspiracy? Conspiracy मतलब साजिश. किसी के खिलाफ प्लानिंग करना, साजिश करना, conspiracy करना. Okay. Now see, the conspiracy got the wind of the government against the king's life. हम किससे सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं? इनसे नहीं कर सकते, वर्ब से नहीं कर सकते, अगेंस्ट से नहीं कर सकते. अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, ये वर्ब है. या तो सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा या इससे स्टार्ट होगा, दोनों ही नाउन है. सेंटेंस हमेशा या तो नाउन से स्टार्ट होता है या प्रोनाउन से. क्यों बेटा? सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट की जगह सी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आएगा और या प्रोनाउन आएगा. इनके अलावा कुछ नहीं आएगा. ओके, नाउन और प्रोनाउन आएगा जो भी, उसके बाद हमेशा वर्ब चाहिए. क्लियर? तो या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए. और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी या तो नाउन आएगा और या प्रोनाउन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा. क्लियर? अब हमें या तो द गवर्नमेंट चाहिए, द कॉन्स्पिरेसी चाहिए. क्या होगा? गवर्नमेंट नाउन. नाउ दिस द गवर्नमेंट. ओके, द गवर्नमेंट गॉट विंड ऑफ. विंड मतलब हिंट, अंदाजा, आइडिया, क्लू. तो द गवर्नमेंट गॉट विंड ऑफ
किस चीज के बारे में? द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट किंग्स लाइफ. तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? RQPS. नाउ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है बेटा. ओके, नाउ द नेक्स्ट. Now, to death penalty is that in preventing the crime, the important objection, it has not succeeded. Sentence में देखो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है. कहाँ सेंटेंस स्टार्ट होगा देखते हैं. टू डेथ पेनाल्टी, नो, इससे नहीं. इन प्रिवेंटिंग से भी नहीं. इट हैज से भी नहीं. आंसर होगा द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन. तो सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा. अब आर से जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, देखिए आर से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है. हम इस ऑप्शन पे वर्क करके देखते हैं. The important objection to death penalty is that. Now see, this is the subject. Objection किस चीज पे उठाया जा रहा है? Death penalty. Is that it has not succeeded in preventing the crime. The answer is RPSQ. Okay, now the next. Now choose carefully when you want to make your graphic representation for your data. तो व्हेन हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, जैसे आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, तो वी हैव टू चूज द बेस्ट टू प्रेजेंट यू. ओके, चेक आउट द सीक्वेंस. इस सीक्वेंस में क्या होगा? सी, चॉइस केयरफुली. चॉइस केयरफुली यहाँ ये फर्स्ट नहीं होगा. मेक योर भी नहीं होगा. अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन फॉर योर डाटा, या व्हेन यू वांट टू यूज. नाउ व्हेन यू वांट टू यूज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन फॉर योर डाटा, QS. Make your choice carefully. Can this be the option? QSRP. Here it is. QSRP. हम और कोई ऑप्शन देख सकते हैं. When you want to use, make your choice carefully. No, this is wrong. This is the best option. बेटा जब आप wrong options करोगे, आप खुद ही satisfy नहीं होगे, because sentence का sequence ही नहीं आएगा. Okay. Now the next. He would like to see some changes, but as a junior lecturer, he does not cut much ice in the curriculum. Now, what do you mean by cut much ice? हमने ये idiom किया है. Cut much ice means बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं किया है, बहुत ज़्यादा significant काम नहीं किया है. To cut an ice means to do some significant work. To cut an ice means to do some noticeable work. To do some important work. Okay, now see the thing कि 47 sentence का sequence क्या जाएगा. Now see, he would like to see some changes. Okay, तो अगर हम इसको first माने, then he would like to see some changes. कहाँ पर? In the curriculum. But as a junior lecturer, he does not cut much ice. तो वो कुछ changes तो करना चाहता था, बट एज अ जूनियर लेक्चरर वो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम कर नहीं पाया. तो करेक्ट सीक्वेंसेस PSQR. हियर इट इज PSQR. ओके, नाउ द नेक्स्ट. नाउ ही सिंपली स्टार्व्स when there are good crops, but if the crops fail, he lives from hand to mouth. See, hand to mouth हमने ये किया है. hand to mouth means very difficulty in survival. बहुत मुश्किल हो जाना जीना, बहुत मुश्किल से सरवाइव करना. हैंड टू माउथ. नाउ सी, ही सिंपली स्टार्व्स. व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्व्स? भूखे मरना. तो ही सिंपली स्टार्व्स इवन व्हेन देयर आर गुड क्रॉप्स, बट इफ द क्रॉप्स फेल, ही लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ. क्या सीक्वेंस आएगा इसका? चेक करो. नाउ ही लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ. ओके, देन इवन व्हेन देयर आर गुड क्रॉप्स. तो जब बहुत अच्छी फसलें होती है तब भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है. मैंने आपको बताया हैंड टू माउथ मीन्स अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन टू सर्वाइव. सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाना, डिफिकल्ट हो जाना. नाउ सी, ही लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ व्हेन देयर आर गुड क्रॉप्स. तो जब फसल अच्छी है तब भी वो बहुत मुश्किल सर्वाइव कर रहा है, और जब फसल खराब हो गई तो वो भूखा मर जाएगा. नाउ बट इफ द crops fail, he simply starves. Can this be the option? SQRP. SQRP. Now who is here referred to? He is here referred to a farmer, because a farmer is totally depend on the agricultural practice for his survival. तो जब crops बहुत अच्छे भी हो रहे हैं तो भी because he is having a lot of debt on his head, इतना कर्जा उठाया होता है कि उस कारण
और इतना एक्सपेंसिव हो गया है आजकल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कि अगर क्रॉप्स अच्छे भी हो रहे हैं तो भी उसकी सर्वाइवल, उसकी अर्निंग बहुत कम है। और जब क्रॉप्स फेल हो गए, दैट मीन्स जब फसल बर्बाद हो गई, तब तो भूखे ही मरना है। ओके, तो द राइट आंसर इज SQRP। Now 2 more to go for today. Now 49th sentence. See, Providence had helped me to retain my true identity and change the course of my life in the process. क्या होगा इसका आंसर? चेक आउट करो। Providence had helped me. This is noun, this is verb. तो first, इसके बाद किस चीज में हेल्प किया है? To retain my true identity. कहां पर? In the process. Change the course of my life. Check out this option. क्या ये option होगा? PQSR. Providence helped me to retain my true identity and change the course of my life in the process. तो PQRS है यहाँ पर ऑप्शन। PQRS नो। तो अगर हम यहाँ देखें, Providence had helped me to retain my true identity and in the process change the course of my life. तो आंसर is PQSR. This is the correct option. Okay, now check out the last sentence for today. Now we are starting paper 2011 NDA question number 50. We are starting. They marched for a while under the tree. Often they had rested onto the journey. See beta, this is R and this is S. दोनों एक ही लाइन में है, but don't get confused. This is P, this is Q, this is R and that is S. Now read the sentence and check out क्या best option हो सकता है. They marched for a while. Now see, इसमें क्या करेंगे हम? They marched for a while under a tree. Often they had rested onto their journey. Now this question number 50 is your homework for today. Check out the sequence and message me the correct answer so that I can know कि you are watching the video sincerely. इसका correct sequence आप मुझे WhatsApp करिए and I'll give you the answer tomorrow what can be the best sequence for this, but just try hard to solve this question. Okay, that's all for today and be safe, practice at your home, work at your home, study hard at your home, and this is your Neetu ma'am saying bye. Thank you.